ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਸ ਰਹੀਆਂ 4 ਵਜੇ। ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ICCRC ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ AIP ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਹੋਣ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਫੀ 4-5 ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟੈਂਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪਲਾਨ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਉੱਧਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। 5.5 ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 5.5 ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ 5.5 ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ +2 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਕਾਲ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 4 ਵਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਲਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਪਾਸਪੋर्ट ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆएगी, कोई फ़ोन कॉल आएगा, ईमेल आएगी या किमें टच होंगे सारे नाल। देखिए रणवीर जी, जो सर्कुलर VFS ने और इमिग्रेशन ने मिलकर निकाला है उसमें बहुत ही क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि आपको पासपोर्ट सबमिशन की जो रिक्वेस्ट है वो बाया ईमेल आएगी। सो आपकी एप्लीकेशन जब लॉन्च की गई थी उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जो भी ईमेल आईडी यूज़ किया गया है उसी ईमेल आईडी के थ्रू आपको पासपोर्ट सबमिशन की जो है वो ईमेल रिक्वेस्ट आएगी। और कस्टमर को अपने एंड से या स्टूडेंट को अपने एंड से किसी भी तरीके का एफर्ट इसमें नहीं करना है। जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे या जिन लोगों की एप्लीकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, एम्बेसी को लगता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और उनको वीज़ा दिया जाना चाहिए, ऐसे ही स्टूडेंट्स को जो है वो पासपोर्ट सबमिशन की ईमेल आएगी। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡੈਫਰਟ ਲਿਆ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਵੇਟ करिए। देखिए रणवीर जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और मैं ये बता दूं कि अभी तक का जो लॉट था वो सितंबर 2020 वाला लॉट था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एप्लीकेशंस लगे हैं। इनफैक्ट अभी तक भी उनके जो हैं वो AIPs इशू नहीं किए गए हैं या कोई अपडेट ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं है, और उनका ऑफर लेटर सितंबर इनटेक के लिए जो है वो रिवोक हो चुका है। सो ऐसे स्टूडेंट्स को अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके जनवरी इनटेक का जो है वो डेफर लेटर अरेंज करवाना चाहिए। एक डेफर्ड ऑफर लेटर जो है वो अरेंज करवा के टेक्निकल इशू के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमिग्रेशन के जो नए गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से भी ये एडवाइस किया गया है। ये मैंडेटरी एक फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है। अगर आपका सितंबर का ऑफ़र लेटर रिवोक हो चुका है और आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है तो आप अपना डेफर्ड ऑफ़र लेटर जनवरी 2021 के लिए अरेंज करवाएं इमीडिएटली, और आप उसको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करें। सो दिस इज़ एन इशू टू बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा मैम, एक चीज़ समझाओ। इस वक्त 15 अक्तूबर ਨੂੰ खुले ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ कंडीशनल ऑफर लेटर मंगवानी है, ਉਹਦਾ कोई प्रावधान है इस वक्त? देखिए रणवीर जी, कोविड का जब सिचुएशन बहुत ही मेजर लेवल पे चल रहा था तब जरूर कॉलेजेस ने आपको कंडीशनल ऑफर लेटर्स के ऑप्शंस दिए थे, बट अभी हमने फिर से रियलाइज़ किया है कि कॉलेजेस जो हैं वो फर्म एडमिशन्स को ही एंटरटेन कर रहे हैं। सो एज सच ऐसे कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। अगर कुछ कॉलेजेस आपको कंडीशनल ऑफर लेटर्स के लिए अकामोडेट करते भी हैं, सो उन केसेस में ऑफर लेटर ना आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि आई वुड से कि कनाडा के लिए जो रश है वो फुल स्विंग है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट काफ़ी बड़ा लॉट जो है वो इकट्ठा हो चुका है। जो स्टूडेंट्स मई 2020 में नहीं जा पाए थे, या सितंबर वाले स्टूडेंट्स हैं, या 2020 में जो इस बार ग्रेड 12 पासिंग स्टूडेंट्स हैं, वो सब के सब अभी क्यू में हैं। सो इस करके कॉलेजेस के पास काफ़ी बड़ा एक नंबर है अकामोडेट करने के लिए। सो आप कंडीशनल एडमिशन्स को टारगेट नहीं करो, अपना आइल्स कंप्लीट करके कंप्लीट रिजल्ट्स के साथ अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करो। जी, जो रिफ्यूज़ल है
ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਫੀਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, GIC ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਫੀਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨਵੇਂ 'ਚ ਭਰੇ, ਉਸੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए एवरीथिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल। मैं ये कहूँगी कि जैसे जिस फ्लॉ में पहले एप्लीकेशंस प्रोसेस होती थी वही फ्लो आज भी है। अगर आपका जो है वो रिफ्यूज़ल आ चुका है, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। आपको अगर लगता है आप सेम कॉलेज प्रोसेस करना चाहते हैं, इनफैक्ट आई वुड से कि आप रिफ्यूज़ल का रीज़न जो है वो पहले आप एक बार ज़रूर असेस करें। अगर इररेलेवेंसी वाला कोई इशू है या आपकी लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है वो आप मीट नहीं करते, सो डेफिनेटली आपको अपना IELTS इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर इररेलेवेंट कोर्स से कुछ किसी अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स में, रेलेवेंट कोर्स में स्विच करके नया ऑफर लेटर अरेंज करके आपको प्रोसेस करना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि आपके सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्वालिफाइंग फैक्टर्स हैं और ऐसा कुछ मेन रीज़न आपको नहीं लगता रिफ्यूज़ल का, तो आप फिर से चांस ले सकते हैं। लेकिन अगेन आई हैव टू से कि आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फिर से अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हैं, ताकि रिफ्यूज़ल ना आए और आप सही तरीके से इम्प्रूवमेंट करके अपनी एप्लीकेशन को रीऑर्गेनाइज करके वीज़ा के लिए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ICCRC ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੌਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ठीक नहीं हो सकती? देखिए ऐसा है कि हम लोग ICCRC के गाइडलाइंस के थ्रू ही एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म्स को केयरफुली भरना, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको केयरफुली प्लॉट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वी हैव सीन कि कुछ केसेस में पास्ट में हमने ये भी देखा है कि क्लैरिकल मिस्टेक्स अगर हों तो वो एंटरटेन हो जाती हैं, अकामोडेट हो जाती हैं, बट उसके बावजूद मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो आपकी पर्सनल हिस्ट्री है कि आपने 10th ऑनवर्ड्स आप क्या करते रहे हैं, कौन सा पीरियड आपका अनएम्प्लॉयड है, आपका गैप है, या आपकी जो वर्क स्टेटस है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चनर में या आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आपका गैप है, हम यूजुअली देखते हैं कि स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है गैप कवरिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, सर्टिफिकेट्स लोकल काउंसिल के ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। सो गैप कवर करना एक बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, और ऐसे ही किसी स्ट्रीट साइड वेंडर से कंप्यूटर सर्टिफिकेट या टेली के सर्टिफिकेट्स, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करके आपको अपनी एप्लीकेशन में नहीं लगानी चाहिए। सो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो गैप कवर करने के हो सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आप किसी नॉलेजेबल कंसल्टेंट को अप्रोच करते हैं सो इन सब चीज़ों से रिस्क फ्री हुआ जा सकता है। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक सक्सेसफुल वीज़ा के लिए वर्क करती है। वैसे तो एडे वड्डे देश, डेवलप्ड देश इस तरह की वितकरे वाली गल नहीं करते, पर फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, किसी एप्लीकेशन दे विच लड़का मेन एप्लीकेंट है, किसी दे विच फीमेल है, इधर रिजल्ट का कोई इफेक्ट पैंदा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर स्पाउजल केसेस की हम बात करें, जिसको नॉर्मली स्पाउजल कहा जाता है, सो बेसिकली इस कैटेगरी में मेल एप्लीकेंट हो या फीमेल एप्लीकेंट है जो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता है। लेटर ऑन जब आपका स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है तो आपका जो डिपेंडेंट स्पाउस इंडिया से है वो बाद में ओपन वर्क परमिट वाली कैटेगरी में अपना वीज़ा फाइल कर सकता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फीमेल एप्लीकेंट हो स्टूडेंट वीज़ा के लिए या मेल एप्लीकेंट हो, ईदर ऑफ यू कैन बी द एप्लीकेंट। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि जब यहाँ से डिपेंडेंट स्पाउस ने जो अपना वीज़ा फाइल करना है, उस चीज़ के लिए आप कितना क्वालिफाई करते हो। अगर आपकी यंग मैरिज है, आपने बहुत छोटी एज में मैरिज की है, वो रिस्की रहता है। यंग मैरिज से मेरा मतलब है कि ग्रेड 12 वाली जो लड़की है, या फिर आप अंडर एज हो, मैरिज वाली एज नहीं है आपकी। और मेल कैंडिडेट के केस में आपकी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होना, एक मंथली रेगुलर इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यूजुअली देखते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट आपका ऑक्यूपेशन अलॉट किया गया होता है। सो पंजाब बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए ही फेमस है, और ये देखा जाता है कि जो यंग बॉयज़ हैं वो फील्ड्स में जाके कोई टेक्निकल या हैंड जॉब्स नहीं करते। सो अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट दिखाते हैं, सो इट मीन्स दैट यू आर फ्री, क्योंकि सारा साल फील्ड में जाके काम करने वाला एग्रीकल्चर वाला जो ऑक्यूपेशन है वो नहीं है। सो इस करके हम एडवाइस करते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ साथ आप कोई जॉब ज्वाइन करें, किसी भी तरीके की आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको मंथली रेगुलर इनकम है। वी ऑल्सो रिकमेंड कि आप अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे ध्यान दें, और आप जो अपनी सैलरी लेते हैं वो बाय बैंक सैलरीज लें। इसके अलावा आप अपने फंड्स, अपने सेविंग्स को ज़रूर इम्प्रूव करें, क्योंकि आप एक मैरिज केस में अपना एप्लीकेशन फाइल करने वाले हो। सो बीइंग अ मेल कैंडिडेट, आपकी इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी वाइफ की
एजुकेशन के एक्सपेंस को बेयर कर सकें, आप अपना कनाडा ट्रेवल जो है वो उसका एक्सपेंस बेयर कर सकें। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन को मैटर करती हैं। इसके अलावा मैरिज के बाद जो टाइम दिया जाना चाहिए, आप फास्ट वे में जो मैरिज है वो ना प्लान करें। हम लोग देखते हैं कि मैरिज के बाद आपकी जो कोर्टशिप है या जो आपका कोहैब है वो मुश्किल से 15 या 20 दिन का है। सो उस चीज़ को जो है वो इमिग्रेशन पॉजिटिव नहीं लेती है। काफ़ी सारे रिफ्यूज़ केसेस में हम लोगों ने ये रीजंस देखे हैं कि मैरिज के बाद का जो स्टे है हस्बैंड वाइफ का वो मुश्किल से 15 डेज़ का है या 1 महीने का है। ਸੋ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ऐसी दी सीधी। देखिए, कंपनी करना या नॉन कंपनिंग होना ये रीज़न नहीं है। बेसिकली मैरिड और अनमैरिड होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने ये देखा है कि मैरिड होने के बावजूद भी जो है वो दिखा दिया जाता है कि आप मैरिड नहीं हो, और मे बी आफ्टर अ मंथ और 2 आपके हस्बैंड की एप्लीकेशन फाइल होती है जिसमें ऑब्वियसली जो वाइफ है उसके डॉक्यूमेंट्स क्लब होंगे। सो वो चीज़ जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन वाले फैक्टर कैटेगरी में आ जाती है। सो ये चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर फ्लाई करने से पहले या वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले अगर आप मैरिड हो तो आप अपना जेन्युइन स्टेटस जो है वो एक्सप्रेस करो अपनी एप्लीकेशन में। इनफैक्ट और चीज़ भी एक मैं ऐड करना चाहती हूँ कि मैरिज के बाद अक्सर ये देखा गया है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गेन करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। उसका प्रोसेस जो है वो महीने 2 महीने का प्रोसेस है। इन बिटवीन आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हो और आप सिंगल मेंशन करते हो। सो दीज थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव। आपको ये अपने स्टेटस को जेन्युइनली प्रेजेंट करना अपनी एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ +2 ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ, ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, SDS ਕਾਲਜਸ, ਨॉन SDS ਕਾਲਜਸ किमें कोऑपरेट करेंगे स्टूडेंट्स ना एडमिशन के मामले में? देखिए रणवीर जी, ऑल द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आर एंटरटेनिंग यू, वेलकमिंग यू। मई इनटेक के जो एडमिशन्स हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने सितंबर 2021 के लिए भी अपने प्रोग्राम्स ओपन कर दिए हैं। सो स्टूडेंट्स को इस वक्त जो है वो रश काफ़ी है कनाडा के लिए। सो टारगेट यही करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सकता है आप अपनी एप्लीकेशन ऑफ़र लेटर के लिए आप अप्लाई करें, ताकि आपके चॉइस वाले कॉलेज में, आपके रेलिवेंट प्रोग्राम्स में आपकी जो एडमिशन है वो सिक्योर हो सके। सो ऑलरेडी फुल स्विंग एप्लीकेशंस हैं। सो जो लोग अभी अप्लाई नहीं कर पाए हैं उनको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए जी। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं पार्टिकुलर लूँगा, पर पिछे सुनने ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 2-3 ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਡ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕ ਲਾਉਂਗਾ ਨਾ, CAQ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ शायद ਉਹਦਾ कोर्स भी ਇੰਨਾ ज़्यादा रेलिवेंस नहीं ਹੁੰਦਾ। सो क्यूबिक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ कहना ਤੁਸੀਂ? देखिए, ऐसा है रणवीर जी कि क्यूबिक अपने आप में एक बहुत ही डेवलप्ड और एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है आज की डेट में। लेकिन आप जब अपना इंस्टीट्यूट प्लान करते हैं, अपनी एजुकेशन प्लान करते हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं जिस पे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए। एक तो आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि आपका जो प्रॉस्पेक्टिव कॉलेज आप प्लान कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होना चाहिए, या सिंपल लैंग्वेज में हम उसको पब्लिक कॉलेज कह देते हैं। पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक कॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को भी आप टारगेट कर सकते हैं। और एबव ऑल आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रोग्राम या कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का फैसिलिटी है या नहीं। सो ये 2 चीज़ें आपके सक्सेसफुल वीज़ा को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा है कि पिछले कुछ टाइम से क्यूबिक को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है इस चीज़ को लेके कि आप 6 ओवरऑल 2 मॉड्यूल में 5.5 या ओवरऑल 5.5 वाले कॉम्बिनेशन के साथ आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। सो ये चीज़ इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, और स्टूडेंट को 5.5 वाले कॉम्बिनेशन पे इनफैक्ट हम लोग अपने डेस्क से हमेशा यही चीज़ एडवाइस करते हैं कि डोंट टेक अ चांस विद योर 5.5 आइल्स, क्योंकि ये ऑलवेज़ रिस्की है। और अगर कुछ केसेस ऐसे कभी हम लोगों ने ऐसे रणवीर जी कुछ केसेस नहीं किए हैं 5.5 के साथ, क्योंकि हम हमेशा यही चीज़ कहते हैं 6 इन ईच या 6 ओवरऑल
एक मॉड्यूल में 5.5 के साथ आप अपना एप्लीकेशन में चांस लीजिए, वो भी अगर आपके एकेडमिक स्कोर्स अच्छे हैं तो। जी। सो क्यूबिक में इस तरीके के काफ़ी सारे प्रमोशंस हैं जहाँ पे 5.5 के साथ स्टूडेंट को अट्रैक्ट किया जाता है। बट मैं ये चीज़ को थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगी कि अगर हम अच्छे तरीके से क्यूबिक के करिकुलम को देखें और उनके इंस्टीट्यूट्स को देखें, सो वी वुड फाइंड कि काफ़ी सारे कॉलेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट फैसिलिटीज़ के साथ ऐसे कॉलेजेस हैं। आई कैन नेम अ फ्यू ऑल्सो। आप मैट्रिक्स कॉलेज को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, सिजिप ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हैं, इसके अलावा आप लसाल कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। देयर आर लॉट मैनी कॉलेजेस जो पब्लिक फंडेड कॉलेजेस हैं और उनके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑप्शंस भी हैं, and they may accommodate you with 6 overall and 5.5 also. So इस तरीके के कॉलेजेस के साथ आप अपने टाई अप्स करें, अपने ऑफर लेटर्स अप्लाई करें ताकि आपके एप्लीकेशंस में किसी तरीके के रिस्क ना रहें। जी। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਈ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2021 ਦੇ ਮਈ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਏਗੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਇਲਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, GIC ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ 70% 2020 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੇ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ मैं जाऊँगा, या कोई क्रैश कोर्सेस करे या की करे उदों तक? देखिए रणवीर जी, ऐसा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये चीज़ कहूँगी कि कोविड की सिचुएशन की वजह से जो कैनेडियन इमिग्रेशन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा एकामोडेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है। वो हर ग्राउंड पे स्टूडेंट्स को जो है वो एकामोडेट करना चाहती है एंड दिस इज़ अ नेचुरल कॉज। तो ये चीज़ देखी जा रही है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में गैप है सो दैट इज़ ड्यू टू नेचर ओनली, उसमें स्टूडेंट का कोई हाथ नहीं है। बट स्टिल मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी कनाडा एजुकेशन प्लान कर रहे हो और इस कोविड सिचुएशन की वजह से आप टाइमली मई इनटेक में अकामोडेट नहीं हो पाए हो और आपको सितंबर 2021 टारगेट करना है या वही उसी के लिए आप एलिजिबल होते हो, सो आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज को ज़रूर टारगेट कर सकते हो। इनफैक्ट आई हैव टू से कि बहुत सारे कैनेडियन कॉलेजेस हैं वो ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपको ऑफ़र करते हैं। काफ़ी सारे जो कोर्सेज हैं वो टूरिज़्म से रिलेटेड हैं या फिर आपके कंप्यूटर लाइन से रिलेटेड हैं, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को लेके शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हैं वेरियस कॉलेजेस आर ऑफरिंग यू दिस काइंड ऑफ कोर्सेज ऑनलाइन। एंड इसके अलावा जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ वो ये है कि आप फ्रेंच को टारगेट कीजिए। फ्रेंच क्योंकि कनाडा जो है वो ड्यूल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इंग्लिश के साथ साथ जो फ्रेंच है वो भी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो आप घर बैठे बैठे फ्रेंच लैंग्वेज के कोर्स को टारगेट कर सकते हैं। आप A1, A2 जो बेसिक लेवल्स हैं आप उनको टारगेट कीजिए। अगर आप थोड़े स्मार्ट कैंडिडेट हैं, ब्रिलियंट हैं, थोड़ा और हार्डवर्क आप कर सकते हैं तो आप B1 और B2 लेवल तक आप अपना फ्रेंच क्लियर कीजिए, क्योंकि B2 लेवल तक का जो फ्रेंच है वो आपको आपके PR एप्लीकेशन में पॉइंट सिक्योर करता है। सो इस तरीके से आप अपने गैप को कवर अप कर सकते हैं और आई वुड से कि आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज को प्लीज़ टारगेट करें। दर्शक सानू लाइव काउंसलिंग, लाइव कॉल, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:20 ਤੱਕ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 8 ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਦਿਨੇ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਚਲਦੇ ਕੁਛ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ मैं यही एडवाइस करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को कि एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं कनाडा के लिए मई 2021 इनटेक के लिए। इनफैक्ट सितंबर 2021 के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स अच्छे कॉलेजेस में जनवरी 2021 के लिए भी हैं। सो आई हैव टू से कि अगर आपके करिकुलम्स कंप्लीट हैं, आपके प्रोफाइल्स कंप्लीट हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशंस फाइल कीजिए ऑफर लेटर के लिए ताकि आप टाइमली अच्छे कॉलेजेस में अपनी सीट सिक्योर कर सकते। थैंक यू जी, शुक्रिया। कल 4 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।